Ojit, please ask your question. Oh, hello. Am I audible? Yes, Yeah, Ajit, we can you hear you. are. Thank you so much for a wonderful talk. I enjoy really because an insider walking there in that particular landscape, understanding the issues and giving a lot of comparative account. My question to Rajesh and Imran is very simple. I really do not know whether it is a real context to share or not. I come from the northeastern region, and the northeastern region also has its own uh, pandemic and epidemic as regard to the unrest, social unrest. I mean, so we come from a landscape where terrorism was so synonymous when we were growing up. But when I came to Delhi and study along with my colleagues from Bihar, UP, then Chhattisgarh, and even my supervisor was asking about what is the condition of Naxalism in your state, because we come from a disturbed site. My supervisor was also from Gaya, from Bihar. So sometimes when we were talking, I'm asking the question from a very layman because I do not know the real scholarship behind, and I do not know the intricacies and different terminology associated with what you are in. But I really got confused when my supervisor was asking when we have a cup of tea in the laboratory, said, Ojit, how is the condition of Naxalism in your state? Because when I came here, Naxalism was a new term. It is a unrest. I said, sir, in my area, we have a terrorist problem, people killing each other. Uh, that's how I begin thinking about Naxalism and the terrorism, whether they are similar or not. Still, I am unable to find the real clear-cut difference between these two. So I want to ask the two scholars, what is the difference between Naxalism and terrorism? And if you do some kind of a comparative accounting, uh, can I imagine that terrorism in the northeastern region and other parts of India, including Jammu and Kashmir, and the Naxalism that we find in the central region of India, is this too similar at the core of, are they anchoring to the some kind of a similar? Because if we happen to see the terrorism in my area also, what I have seen is many of the youngsters have gone and become terrorism. They are in one way or the other affected by poverty and distance from the political power. I may not be very true, but this is what I have seen from a general outlook. So please kindly share me what is the difference between Naxalism and terrorism. And the second one is these two terms have the same core kind of a reason behind? And I was just asking this question that do you think that the present environmental changes that we are facing nowadays, if it is not mainstream, will it make the issue of social unrest, Naxalism, and terrorism even more dangerous? So that's my supplementary questions. Thank you so much. Thank you. अजीत, आई थिंक राजेश अपना माइक अनम्यूट करने के लिए कह रहे हैं. अजीत जी, मैं हाँ राजेश, मुझे प्लीज गो. मैंने ये अपने में मतलब मैंने अपने मोबाइल से लॉगिन किया था, तो जी। मैं इसको अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर लेता हूँ ताकि ये मेरा मोबाइल फ्री हो जाए. मैं देख नहीं पा रहा चैट, इसलिए मुझे कुछ बट ज्यादा अच्छा है राजेश अगर आप इससे कंटिन्यू करें, क्योंकि चैट में ज्यादा कुछ क्वेरीज है नहीं. लाइक वी हैव वन मोर पार्टिसिपेंट जो एक क्वेश्चन पूछेंगे, सो लाइक इट्स फाइन इफ यू कैन कंटिन्यू विद द सेम डिवाइस. तो जी, इमरान सर, आप डॉक्टर ओजित को मतलब आप जवाब देना चाहेंगे? राजेश, मैं यहाँ सिर्फ आपको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए हूँ. मैं आप अपनी बात कहें. मैं बहुत सिंपल सी बात है, मैंने 2016 में 15-16 में सबमिट कर दी थी. सवाल एकेडमिक लेवल पे मैं एंगेज कर सकता हूँ, बट मैं चाहूंगा कि मैं उजित से वो चाय की प्याली वाली डिस्कशन में जाऊं. तो आप पहले आप स्पीकर हैं, आप पहले आए. जी, मैं कॉम्प्लीमेंट करूंगा आपको. सवाल मुझे जितना समझ में आया मैं उस हिसाब से जवाब देने की कोशिश करता हूँ. नक्सलिज्म और टेररिज्म में फर्क करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मैंने पढ़ा था कहीं कि ये जो वायलेंस का जो पूरा जो
पावर मतलब वायलेंस का जो अधिकार होता है वो सिर्फ स्टेट के पास होता है, और अगर वो कोई और करता है तो वो स्टेट ही उसको एक टर्म देता है जो रेवोल्यूशन भी हो सकता है और टेररिज्म भी हो सकता है। तो मेरे हिसाब से नक्सलिज्म तब तक रेवोल्यूशन है जब तक स्टेट उसको ऑथेंटिकेट करता है, और नक्सलिज्म जैसे ही स्टेट के अगेंस्ट जाता है तो वो टेररिज्म हो जाता है। और दूसरा सवाल मैं भूल गया, तो अजीत जी वो पूछ से रहे थे कि क्या इन्वायरमेंटल चेंजेस को अगर मेन स्ट्रीम नहीं किया जाए तो ये सोशल अनरेस्ट बढ़ेगा। एनवायरमेंट, मुझे लगता है कि जिस एरिया पे मेरा फोकस है वहां पे एनवायरमेंट से रिलेटेड इसका कोई प्रभाव नहीं है, और एनवायरमेंट से जुड़ी कोई भी ऐसी अनरेस्ट को वहां पे नहीं देखा गया है अभी। मतलब सेंट्रल बिहार के रीजन में जिस जहां मेरा एरिया ऑफ स्टडी है वहाँ एनवायरमेंट का ऐसा कोई रिलेशन नहीं है नक्सलिज्म से या सोशल अनरेस्ट से। जी इमरान राजेश, प्लीज हाँ, कॉम्प्लीमेंट करें। बिल्कुल बिल्कुल। मैं चाहूंगा Ojit, if you could mute your mic, unmute your mic. I would like to talk to you rather than give you an elaborate explanation on what is being said. So that would be something. Yes, yes, yes. Yeah, thank you, Ojit. Thank you so much. So Ojit, like Rajesh was mentioning, that when we are looking at excuse me, when you Ojit, are you comfortable with Hindi? Because I'm presuming larger part of our audience. No, not an issue, not an issue. Okay, thank you so much. Thank you so much. I just wanted to have that clarification. हाँ, तो जैसा राजेश बता रहे थे कि सॉवरेंटी का जो सिद्धांत है, संप्रभुता का जो सिद्धांत है, वो प्रिज्यूम करता है कि स्टेट के पास मोनोपोली है ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस का, और वो लीगली जस्टिफाइड ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस है, वो लॉ को अपहोल्ड करने के लिए वायलेंस है। और उस कॉन्टेक्स्ट में टेररिज्म, अगर आप इंटरनेशनली समझना चाहेंगे, तो उस सिद्धांत को कहते हैं जो कि हिंसा का इस्तेमाल करे सरकार से अपनी बात मनवाने के लिए। तो इट्स मोर ऑफ अ जेनरिक कंसेप्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस विच आर्ग्यूज, और जो देखना चाहता है कि ऐसे समूह जो हिंसा का इस्तेमाल करते हैं सरकार से अपनी बात मनवाने के लिए, उनको टेररिस्ट कहा जाता है। ठीक है? और उस सैद्धांतिक लेवल पे, चाहे टेररिज्म नॉर्थ ईस्ट पे हो रहा हो, चाहे पंजाब में का इतिहास रहा हो, चाहे मेन स्ट्रीम इंडिया का इतिहास रहा हो, रेलेवेंट रोल रहता है कि उनको इन द कैटेगरी ऑफ टेररिज्म आप डाल सकते हैं। नाउ कमिंग टू जिस क्लासिफिकेशन की ओजीत आप बात कर रहे थे, बिटवीन नॉर्थ ईस्ट, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर और मेनलैंड, सेंट्रल लैंड इंडिया, जैसा आप उसे कहना चाहें, उसकी यहाँ पे सॉवरेंटी का जो दूसरा प्रिंसिपल है टेरिटरी का, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। व्हेन, और ये चीज आपको इस बात पे दिखेगी कि व्हेन स्टेट जो है वो पीस टॉक कर रहा होता है, चाहे वो कश्मीर में हो, चाहे वो पंजाब में हो, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट में हो, और ये तीन इलाके मैं बहुत स्पेसिफिकली चुन रहा हूं जिनको इंसर्जेंसी कहा जाता है सरकारी दस्तावेजों में। तो आउटफिट्स जो हैं उनको हथियार रख के भी पीस टॉक पे आना अलाउड होता है, लेकिन जब सरकार नक्सलिज्म से पीस टॉक्स कर रही होगी, उनके एमएचए के इंटरनल सिक्योरिटी रिपोर्ट में ये लिखा हुआ है कि देयर विल बी नो पीस टॉक विद नक्सलाइट्स और माओइस्ट और लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट टिल दे लेट गो ऑफ आर्म्स। Now this has to do with two things. Firstly, all three, Punjab, Kashmir and Northeast, territorially are border regions. They are borders of India. There is a possibility that they can secede from India. At the same time, because they are frontier regions, the administrative capacity or the governmental power of the state is still
limited, which then makes terrorisms of these areas being looked at as a state in a very different manner than the mainland India. तो ये जो डिफरेंस है उनके लोकेशन का, उनकी टेरिटोरियलिटी का, वो काफी फंडामेंटल है इस चीज को ध्यान में रखने के लिए. अजीत, does that explain? Yes. Yeah, ठीक है. Thank तो you so much. so terrorism, you can say, is a more generic phenomena which is looking at the principle of sovereignty, samprabhuta, जो कि monopoly over means of legitimate violence. I think Weber ने बहुत पहले कह दिया था, हम अभी तक वो बात दोहराते चले जा रहे हैं. However, post globalization, ये जो सिद्धांत है टेररिज्म, उसका सिर्फ एक साइड नहीं है. अगर आप देखेंगे तो कोलिशन पॉलिटिक्स जो शुरू हुई, नेटो, वार्सो, सीएटो, सेंटो, ये जितने भी इंटरनेशनल मिलिट्री अलायंसेस हैं, उन्होंने भी ये जो मोनोपोली ऑफ वायलेंस है उसको डिस्प्लेस किया. तो मोनोपोली ऑफ वायलेंस जो स्टेट की थी, वो ना सिर्फ इंटरनली चैलेंज हुई है बल्कि एक्सटर्नली भी डिस्प्लेस हुई. और उस वजह से टेररिज्म एक अजीब सी फ्लक्स में आ गया है, जो कि ट्रांसनेशनल हो सकता है या इंटरनल हो सकता है. Right. Very nicely explained. Now, from there you go into the next question, the question of environmental changes and what it is going to do. Rajesh जिस period की पे काम कर रहे हैं till 2000s, that question will not become significant for Bihar because Bihar is the epicenter of Naxalism. In the 21st century, Naxalism will see a very different shift, and it will shift to areas of Jharkhand, Chhattisgarh, Orissa, from its traditional regions of Andhra, West Bengal, and Bihar. Now, there is a substantial body of work on resource conflicts and resource conflicts of different kinds. So when you are looking at Africa, for example, resource conflicts would be looked at in terms of how people come to take over state power and then control extractive industry. और ये चीज आपको हीरे के खदानों में या पेट्रोलियम के खदानों में बहुत हाई लेवल पे दिखेगी. इन केस ऑफ इंडिया आपको ये चीज दिखेगा हाउ प्लेन्स से पठारी इलाकों में नक्सलवाद का शिफ्ट हुआ है, हाउ इट हैज शिफ्टेड फ्रॉम द प्लेन्स टू द प्लेटो फर्स्ट. सेकेंडली, इस शिफ्ट को आप एक्सपेंशन ऑफ और प्राइवेटाइजेशन ऑफ माइनिंग से भी रिलेट कर सकते हैं. तो पोस्ट वाजपेयी गवर्नमेंट देयर इज अ शिफ्ट जिसके तहत माइनिंग जो है वो इन इलाकों में बेहतर एंटर करता जाएगा. फॉरेस्ट राइट्स और इंक्रोचमेंट का जो प्रिंसिपल है वो इन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट जो है वो रीडिफाइन करेगा 2002 में. और इन इलाकों में खास करके नक्सलिज्म या लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म और माओइज्म जो है वो सेंट्रल फोकस बन जाएगा. अब लोग इसे लाइवलीहुड कॉन्फ्लिक्ट के नाम से भी पढ़ रहे हैं, एनवायरमेंटल रिसोर्स कॉन्फ्लिक्ट के नाम से भी पढ़ रहे हैं, बट सोशल अनरेस्ट विल रिमेन अ फिनोमेना एज लॉन्ग एज इनको वो फॉडर या फ्यूल मिलता रहेगा ऑफ ऐसे लोग जिनके अंदर अत्याचार, अनजस्टिस और एक्सप्लॉइटेशन की कहानी मौजूद है. और आवेश और गुस्सा हिंसा में ले जाना बहुत आसान है बनिस्बत की एक संगठित सोशल मूवमेंट में ले जाना. तो I think that should be something that can be kept in mind. Yeah.
Okay. Yeah, thanks, Imran. And there is one more query. It's from Sanjeev. So he has. Yes, Sanjeev, go ahead. Okay. Sanjeev, So, please ask your question yeah. or query, whatever it is. Yeah. First of all, thank you, Rajesh, for this wonderful. The detail, as Imran said, detailed 2 centuries, historical trajectories. मेरा जो सवाल थोड़ा सा है, वो बहुत सारे सवाल मेरे दिमाग में थे, लेकिन इमरान ने वो पहले ही सारे सवालों का जवाब दे दिया। छोटे छोटे एक सवाल मेरा बहुत ही वो है, बहुत उस टाइप का है कि इंफॉर्मेशन टाइप का है राजेश से, कि जब वो कह रहे हैं कि कायस्थ लोग डोमिनेट कर रहे थे लेट 19th सेंचुरी में बिहार की पॉलिटिक्स को, तो उस समय जब सेंसस रिपोर्ट जब बन रहा था, उस सेंसस रिपोर्ट में हमेशा कैटेगरी चेंजेस हो रहे थे। और इंटरेस्टिंगली अगर आप देखेंगे तो 1930s 2030s में भी बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट है जहाँ पे जो लीडर हमारे हैं, जो भूमिहार लीडर हैं, बहुत सारे ऐसे नाम है, उनको कायस्थ बोला जा रहा है, ये कायस्थ से बिलोंग करते हैं। तो कायस्थ थे कौन? एक सिंपल लैंग्वेज में मुझे ये जानना है उस दौर में किनको कायस्थ बोला जाता था, कौन कौन से कास्ट कैटेगरी थे वो उसके अंडर में आते थे पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, जो लेट 19th सेंचुरी या 19th सेंचुरी के एंड तक का जो बात कर रहे हैं, उसमें वो कौन थे? बाकी सारे सवाल का जवाब मुझे मिल गया है, एक्सेप्ट वो जिसकी तरफ इमरान ने किया और फिर छोड़ दिया, उसमें मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड था, बिहार और यूपी को कंपेयर करने में, क्यों यहाँ पे नक्सल मूवमेंट नहीं हो पाता है उस तरह से, या इस तरह का लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म नहीं हो पाता है। और मेरा बस एक क्वेरी है कि क्या ये कारण हो सकता है कि बिहार में क्या हुआ कि अपर कास्ट का डोमिनेशन होता है, उसके बाद लेफ्ट विंग आता है और वो कहीं ना कहीं उस लेफ्ट विंग के एक्सट्रीमिज्म में भी अपर कास्ट ही डोमिनेट कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक तरह का वॉल्व क्रिएट करता है जहाँ पे कि वो ऑटोनोमस रेजिस्टेंस दलित की तरफ से आ ही नहीं पाता है। जैसा कि यूपी में शायद यूपी में ऐसा कोई कैटेगरी सामने निकल करके अपर कास्ट से नहीं आता है जो कि लीड करे दलित को और फिर उस तरह का वॉल्व क्रिएट करे और उनके ऑटोनोमस मूवमेंट या ऑटोनोमस रेजिस्टेंस को आने ही ना दे। ये मेरा एक बस क्वेरी है कि ऐसा क्या पॉसिबिलिटी इस तरह का एक्सप्लेनेशन हो सकता है। जो मैं सबसे ज्यादा जिस सवाल के लिए इंटरेस्टेड हूँ, जिसको उजित ने फ्लैग किया और मैं उसके ऊपर अभी काम कर रहा हूँ, इसलिए मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आई रिक्वेस्ट बोथ द स्पीकर की अगर कोई भी इसका जवाब दे पाए तो। उत्तराखंड के अंदर 70s में वही दौर है, 60s 70s से ही एनवायरमेंट और उन चीजों को लेकर के, फॉरेस्ट एक्ट, एनवायरमेंटलिज्म, इन चीजों को लेकर के हर तरह के प्रोटेस्ट होते हैं, बट द मोड ऑफ द प्रोटेस्ट वाज गांधीयन। लेकिन यहाँ पे लेफ्ट का प्रेजेंस था और बॉर्डर स्टेट भी है ये उत्तराखंड। और 60s में ये बातें भी बार बार आ रही है, आरएसएस ये लोग कह रहे हैं कि हमको उत्तराखंड को स्पेशली देखना पड़ेगा बिकॉज इट्स बॉर्डरिंग चाइना। तो जो मैं यहाँ पे, मुझे अभी तक जो एक्सप्लेनेशन जिस पर्सपेक्टिव से मैं देख रहा हूँ, क्यों यहाँ पे ऐसा नहीं हो पाता है, इस तरह की चीजें होने के बावजूद भी, मूवमेंट भी हुए, हर तरह के हुए, कि यहाँ के मूवमेंट में पार्टिसिपेशन 70%, आई मीन 2/3 से नीचे पार्टिसिपेशन आज तक, अभी तक किसी भी जगह पे किसी भी लीडर ने या किसी भी आर्टिकल में मुझे ये नहीं मिला है कि इन मूवमेंट में 70% से नीचे पार्टिसिपेशन मूवमेंट का था। So it was in terms of participation, at least it was dominated by the women, but when it comes to leadership वो नहीं था, women का नहीं था। तो मेरा ये सवाल है, एक हाइपोथेटिकली ये मैं पूछना चाह रहा हूँ कि चूंकि लेफ्ट ने ना तो कास्ट के सवाल को डील किया, ओवरलैपिंग को, और शायद जेंडर के सवाल को भी उसने डील नहीं किया, तो यहाँ पे अगर लेफ्ट वीक हुआ इस पूरे उस टेंशन को कैपिटलाइज करने में, तो क्या ये कारण हो सकता है कि लेफ्ट यहाँ पे जो वुमेन पार्टिसिपेशन, वुमेन डोमिनेटेड पार्टिसिपेशन था, उसको समझ ही नहीं पाया, क्योंकि लेफ्ट ने कभी जेंडर को शायद डील नहीं कर पाया, खास करके उस दौर में। ये मेरा लंबा सा सवाल था, इस पे मैं चाहता हूँ कि अगर मुझे कुछ मिले इसमें तो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल होगा। थैंक यू। थैंक यू संजीव, लवली क्वेश्चन। राजेश आप पहले
हाँ, 1930s में कायस्थ जो कास्ट कैटेगरी थी उसमें मोस्टली लाला लोग थे जिनका काम सिर्फ पढ़ना लिखना था, एज डिफाइंड बाय ब्रिटिशर्स। पढ़ना लिखना था, जो बही खातों का हिसाब रखते थे। और क्योंकि उनके पास एक अपॉर्चुनिटी ये थी कि वो ब्रिटिशर्स इंग्लिश एजुकेशन के वो मतलब इंग्लिश एजुकेटेड ज़्यादा लोग होते थे, इसलिए वो जो एस्पिरेशंस थी कि हमें भी गवर्नमेंट जॉब मिले, हमें भी वो प्रिविलेज मिले, इसलिए लोगों ने ये जो प्रोसेस शुरू किया, ये जो मोबिलाइजेशन, कास्ट मोबिलाइजेशन शुरू हुए, वो इसी वजह से हुए। क्योंकि उस समय ये जो हर कोई लैंडेड क्लास नहीं था, सबके पास जमीनें नहीं थी। मैक्सिमम जो बिहार की जनता थी उस समय के 1930s की, वो टेनेंट्स या टेलर्स थे। तो जो एस्पिरेशन था उनका कि वो अब लाइवलीहुड के लिए उनको बेटर ऑप्शन सिर्फ गवर्नमेंट जॉब्स दिखती थी। उसमें एक वो अपने आप को फील करते थे कि एक प्रेस्टीज है उनका, एक रुतबा बनेगा समाज में। इसकी वजह से उन्होंने कास्ट एसोसिएशंस बनाया, उस अपने कास्ट के लोगों को प्रमोट करना शुरू किया। और वही रीजन था कि लोग, जैसे आपने संजीव ने अभी बताया कि कुछ भूमिहार लोग भी कायस्थ बोल रहे थे अपने आप को ओवर द सेंसस रिपोर्ट्स। वो इसका कारण यही था कि लोग अपने आप को ऐसा रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे थे थ्रू कास्ट सेंसस कि उनको ज्यादा से ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज मिले। और जॉब अपॉर्चुनिटीज उन्हीं को मिल रही थी जो इंग्लिश एजुकेटेड थे और जो अपर कास्ट लोग थे जिनके पास पैसा था, जो पढ़ लिख पा रहे थे। इसी वजह से कास्ट एसोसिएशन बनने शुरू हुए थे। और उनका, जैसे मैंने पेपर में भी बताया था कि वो संस्कृताइजेशन का जो प्रोसेस शुरू हुआ वो कास्ट एसोसिएशन के जरिए ही शुरू हुआ। और ये वही दौर था जब इस तरीके से लोग हर सेंसस में ऐसे कई सारे रिपोर्ट्स हैं, ब्रिटिश रिपोर्ट्स हैं, कॉलोनियल रिपोर्ट्स, जिसमें मतलब 1911 के सेंसस में कुर्मी कास्ट ने अपने आप को वैश्य में क्लेम किया है। फिर 1920 वाले में अपने आप को क्षत्रिय बना दिया, क्योंकि उसी समय इन्होंने अपने कास्ट एसोसिएशंस डेवलप क्रिएट करना शुरू किया था। फिर 1931 में इन्होंने एक बाकायदा कास्ट एसोसिएशन बनाया, ऑल इंडिया कुर्मी क्षत्रिय महासभा। तो ये जो संस्कृताइजेशन और ये जो कास्ट मोबिलाइजेशन का जो दौर था, वो इसी वजह से था कि उनको एक बेटर अपॉर्चुनिटी मिले, उनको एक सस्टेनेबल लाइफ मिल सके। मैं सेंसस डेटा ज्यादा इंगेज किया नहीं है मैंने, बट कैटेगरी ऑफ ट्राइब ब्रिटिशर्स ने कैसे बनाया था उस पे थोड़ा बहुत पढ़ा है। और कास्ट ग्रुप के साथ संजीव दो चीजें थी जो कि मैटर करती थी। एक तो ऑक्यूपेशनल डिवीजन, और वो बहुत ही सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट डायमेंशन था। और जैसा राजेश बता रहे थे कि जो क्लरिकल ब्यूरोक्रेटिक ग्रुप था, ऑक्यूपेशनल ग्रुप था। अब आपको ये बात ध्यान में रखना पड़ेगा कि जमींदारों के यहाँ भी ये ग्रुप था। स्टेट अपैरेटस बिफोर ब्रिटिशर्स जो हैं, उनके यहाँ भी ये ग्रुप था। हिस्ट्री में काफी काम है और ऑन दरभंगा राज एंड इट्स गवर्नमेंटल एडमिनिस्ट्रेटिव अपैरेटस, रिकॉर्ड कीपिंग की जो कहानी है उस पे। तो कायस्थ कास्ट ग्रुप जो था वो प्रिडोमिनेंटली उसमें इन्वॉल्व था। हाउएवर, जिस तरह का गवर्नमेंटल अपैरेटस ब्रिटिशर्स लाएंगे इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी, जहां पे कोर्ट से लेके थाना से लेके जमीन के रिकॉर्ड मेंटेन करने से लेके आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट तक, सब में इंग्लिश एडुकेटेड ऑफ अ पर्टिकुलर काइंड जो रिकॉर्ड रख सके। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश एडुकेटेड का मतलब है कि दे कैन राइज अप द लैडर।
एक कैटेगरी है सब्सक्राइब की, जो चीजों को बेसिक लेवल पे लिख सके। उस कम्युनिटी का बहुत मेजर बल्ज होगा विद द राइज ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, और वो एक छोटी सी ऑक्यूपेशनल ग्रुप जो थी वो काफी बल्ज करेगी ओवर द 200 years ऑफ ब्रिटिश रूल। और एक बार जब रिजर्वेशन पॉलिसी आने लगेगा ऑफ गवर्नमेंटल जॉब्स, बहुत सी कम्युनिटी उस चीज के लिए कंटेस्ट करना शुरू करेंगे। अगेन राजेश जैसा पॉइंट आउट कर रहे थे, द फैक्ट और द फिनोमिना अबाउट बीइंग एबल टू गेट इंग्लिश एजुकेशन, उसका मटेरियल रिसोर्स के साथ कहानी था। बिकॉज उस जमाने में ब्रिटिशर्स सिर्फ एक बेसिस पे स्कॉलरशिप देते थे, वो था कि आप बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट हो तो यू विल हैव योर अंबेडकर और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद emerging who will get scholarship and go to England to pursue education. But apart from that basic level पे expansion of education बहुत slow रहेगा ब्रिटिश दौर में। Like पूरे बिहार में I think 25 या 30 स्कूल थे जो कि ऑपरेट कर रहे थे, और उसमें भी अलग अलग प्रिंसिपल्स पे थे। तो झारखंड की कहानी यहाँ पे हमने ज्यादा डिस्कस नहीं की है, बट झारखंड में बहुत स्कूल्स होंगे, बट वो प्रिडोमिनेंटली ट्राइबल्स के लिए होंगे। बकायदा प्रायोरिटाइजेशन होगी ट्राइबल्स की, और उनका क्रिश्चियनाइजेशन होगा अकॉर्डिंग, जैसे यहाँ संस्कृताइजेशन हो रहा था। और 1930s में ये महासभा की जो कहानी है, चाहे वो कुर्मी महासभा हो या कायस्थ महासभा हो या आदिवासी महासभा हो, इनकी पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ जाएगी, स्पेशली बिकॉज लेजिस्लेचर ओपन कर दिया जाएगा, इलेक्शंस होंगे स्टेट लेवल पे खास करके, और साथ ही साथ ब्यूरोक्रेटिक या सेक्रेटेरियल, जो सेक्रेटेरिएट जिसको कहते हैं आज हम, सचिवालय, उसमें रिक्वायरमेंट बढ़ने लगेगी। तो ये जो पीरियड है ऑफ सेंसस, स्पेशली फ्रॉम 1900 टिल अबाउट 1951, काफी फ्लूइड होगा। इनफैक्ट कोयरी और कुर्मी बिहार में डिमांड कर रहे हैं कि वो राजपूत या भूमिहार की कैटेगरी में जाए, झारखंड में वो कैटेगराइज ट्राइबल्स के तौर पे हैं। तो इस लेवल तक की फ्लूइडिटी होगी कि एक ही प्रोविंस के अंदर एक कास्ट ग्रुप एक जगह पे कास्ट कैटेगरी में आ रहा है और दूसरी जगह पे ट्राइबल कैटेगरी में आ रहा है। तो मुझे एग्जैक्टली क्लियर नहीं है कि वो फ्लूइडिटी क्यों थी, मैंने पढ़ा नहीं है उस पर ज्यादा, और इंटरेस्टिंग सवाल हो सकता है रिसर्च का। आई थिंक यहाँ पे जितने लोग मौजूद हैं अगर वो बिहार को देख रहे तो हाँ जी राजेश बताइए। मेरा इस पे एक पेपर है कास्ट मोबिलाइजेशन पे, तो उसमें रीजन सिर्फ और सिर्फ कास्ट एसोसिएशंस का यही था अपने आप को बेटर पोजीशन में, अपने बेटर लैडर पे, सोशल लैडर पे प्रेजेंट करने का, कि उस समय जो अपॉर्चुनिटी थी, जो इंग्लिश एजुकेशन जो अपॉर्चुनिटी दे रही थी, वो सिर्फ और सिर्फ अपर कास्ट को दे रही थी। कुर्मियों को उस समय 1957 के बाद कुर्मी कास्ट को खासकर उसमें उन्होंने क्रिमिनल ट्राइब्स में रखा था। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट मुझे मिला था, जिसमें तो कुर्मियों के पास और इस जैसे जो कम्युनिटी थी, जो बैकवर्ड कम्युनिटीज थी, उनके पास अपने आप को अपवर्डली शिफ्ट करने का और रिप्रेजेंट करने का के अलावा और कोई चारा नहीं था। और उनके लाइवलीहुड के लिए या तो वो जमींदारों की जमीन पे एज बेगार काम करें, या फिर सरकारी नौकरी लेके और अपने आप को थोड़ा मेंटेन करें, या मतलब अपवर्डली मेंटेन करने की कोशिश करें। उनके पास सिर्फ ये दो ऑप्शंस थे, जिसमें उन्होंने कोशिश की आफ्टर सेंसस की। सेंसस रिपोर्ट में ये लिखा हुआ है बाकायदा कि उन्होंने कोशिश की, और वो बार बार, मतलब हर सेंसस में वो अपने आप को अपवर्ड शिफ्ट करने की और बात करने की उन्होंने कोशिश की है। जैसे सबसे पहले जो 1871 का जो सेंसस था,
उसके बाद वो तो इनफॉर्मली कहा जाता है, पर 1881 का जो सेंसस हुआ उसमें उन्होंने कुर्मियों को शूद्र के रूप में कैटेगराइज किया गया था। फिर उन्होंने 1901 तक आके वैश्य में अपने आप को क्लेम किया कि नहीं हम वैश्य कैटेगरी में आते हैं। फिर 1911-21 तक आते आते उन्होंने अपने आप को क्षत्रिय क्लेम करना शुरू किया। वो इसलिए किया क्योंकि जो एक तो पहली बात ये थी कि सोशल स्ट्रक्चर में जो ब्रॉड कैटेगरीज थी ब्राह्मण वैश्य शूद्र, उसमें उनको एक सोशल एक्सेप्टेंस मिलता, उनकी जो अपर कास्ट की जो हेजिमनी थी उस हेजिमनी में उनको सेंध करने का मौका मिलता, और उसको ऑथराइज ब्रिटिशर्स कर रहे थे, जो उस समय पूरा कंट्रोल जो स्ट्रक्चर का स्टेट स्ट्रक्चर का था उनका था, ब्रिटिशर्स का था, और वो ऑथराइज कर रहे हैं तो उसको सोशली एक्सेप्टेंस मिल रहा था। तो उसका रीजन ये था कि वो जो लोग मोबिलाइज कर रहे थे, मोबिलाइजेशन जो हो रहे थे अपवर्डली कास्ट की, वो उसका रीजन ये था। थैंक यू राजेश, मैं ये पेपर पढ़ना चाहूंगा जस्ट फॉर द प्रिंसिपल सेक एज वेल। संजीव, तुम्हारे बाकी दो सवाल जो हैं, एक बिहार और यूपी के कंपैरिजन का, भाई फ्लूइड आंसर है। मैं इसके पीछे एकेडमिक बैकिंग शायद उतना ना दे पाऊं। तो फ्लूइडिटी के हिसाब से दो चीजें मुझे लगती हैं कि एक तो आपने सेफ्टी वाल्व थ्योरी जो बताया कि दलितों को बिहार में नक्सलवाद या लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स की वजह से एक सेफ्टी वॉल्व रिलीज मिल गया, जो कि शायद यूपी में ना मिला हो। बट एक और चीज है जिसको कि नक्सलवाद का बिहार से झारखंड की शिफ्ट में जब आर्गुमेंट दिया जाता है उस वक्त इस्तेमाल करते हैं लोग, कुछ स्कॉलर्स अभी, और वो कहानी है कि गवर्नमेंटल अपरेटस का प्रेजेंस कैसा था किसी इलाके में। और इंटरेस्टिंगली सेंट्रल बिहार का जो एरिया है वो थोड़ा सा 1970s में माउंटेनस फॉरेस्टेड रीजन हुआ करता था, जबकि यूपी जो है ज्योग्राफिकली स्पीकिंग पूरी तरह से प्लेन था। तो प्लस डेंस पॉपुलेशन था, प्लस एडमिनिस्ट्रेशन काफी इंट्रेंच्ड था। यूपी में एडमिनिस्ट्रेटिव अपैरेटस जो है मुगलिया सल्तनत के टाइम से, ब्रिटिश के भी नहीं, मुगलिया सल्तनत के टाइम से काफी इंपॉर्टेंट हो चुका था। और ब्रिटिश के टाइम पे कैंटोनमेंट्स काफी थे भाई, फ्रॉम आगरा टू मेरठ टू कानपुर, कैंटोनमेंट्स काफी बना दिए गए थे, और वो गवर्नमेंटल अपैरेटस जो था वो काफी इंट्रेंच्ड हो चुका था। साथ ही साथ यूपी में कांग्रेस को फॉर सम रीजन और दी अदर दलित मोबिलाइजेशन का भी काफी एडवांटेज हुआ था। तो वो अपने आप को उस तरह से वहां प्रोजेक्ट कर पाए थे, बिकॉज वहां उस तरह की हेजेमोनिक डोमिनेंस जैसा बिहार में एक कास्ट ग्रुप या रूलिंग कास्ट कर पा रहा था, वैसा पिक्चराइज या प्रोजेक्शन हुआ नहीं यूपी के केस में। और 1970s तक जब ये कहानी आई तो आई थिंक बोथ कांसीराम एंड मुलायम in particular were able to forge that linkage, और वो संगठित रूप पे पा पाए जो शायद मेरे ख्याल से बिहार में दलितों को नहीं मिला है, अभी तक नहीं मिला है। आई डोंट थिंक कि उनकी उस तरह की ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बन पाई है जिस तरह की यूपी में और महाराष्ट्र में दलितों की बन पाई थी। तो वो मुझे लगता है कि वो एक कारण है जिसकी वजह से दलित पॉलिटिक्स यूपी में वो स्टेटस एक्वायर कर पाया ऑफ गवर्नमेंटल पावर, जो कि वो शायद बिहार में अभी वक्त लगेगा। आई डोंट थिंक, मुझे होराइजन में भी ये जो दो फैक्शंस हैं मांझी साहब का और पासवान जी का, उनके ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स में वो कैपेसिटी नहीं लगती है
पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन की मुझे, जो जिसकी जरूरत पड़ेगी उन्हें, और आई थिंक वो बीजेपी के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर से काफी स्टिफ कंपटीशन फेस करें। तीसरा सवाल जो संजीव का था वो था उत्तराखंड, विमेन और लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। अब एक्सट्रीमिज्म के बारे में इन जनरल संजीव ये बात कही गई है कि उसे मेल यूथ, और वो दोनों शब्द अलग अलग हैं, सेम फ्रेज में नहीं है, मेल यूथ का बहुत प्रिडोमिनेंट रोल रहा है इन बीइंग एबल टू वेज एन आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट। यूथ इंटरेस्टिंगली इनफ उसकी उम्र घटती चली गई है, तो शायद पहले जमाने में वो 16-17 से शुरू होती थी, आज के दौर में अक्रॉस द वर्ल्ड वो 12-13 से शुरू हो जाती है, या शायद उससे पहले भी। बहुत से लोगों ने मुझे जहां तक याद है इस पे काम भी किया है, चाइल्ड सोल्जर या चिल्ड्रन सोल्जर जिनको कहते हैं उन पे। तो वो एक बहुत बेसिक लेवल पे कारण हो सकता है ऑफ अंडरस्टैंडिंग की अगर 70% पार्टिसिपेशन विमेन का रहा है तो थोड़ी दिक्कत है ऑफ बीइंग एबल टू लॉन्च आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, आर्म्ड रेबेलियन। दूसरी चीज, और आई थिंक वो तुमने बहुत सटीकली कही है, वो है कास्ट और जेंडर का जो डायमेंशन है, और आई थिंक लेफ्ट पॉलिटिक्स को आइडेंटिटी पॉलिटिक्स समझ में नहीं आती, वो उससे डील नहीं कर पाते हैं, वो क्लास को इतना सैक्रोसैंक्ट बना चुके हैं, वो क्लास को इतना कहते हैं ना जिसको कि पदवी पे बिठा के रखना, जो कि मार्क्स ने कह दिया और अब उसको बदलने का कोई स्कोप नहीं है। आई थिंक वो एक बहुत मेजर फैक्टर रहा है। ऑल्सो आई थिंक उत्तराखंड में जितने भी मोबिलाइजेशन के बारे में मैंने पढ़ा है, उनमें मास पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, और आपको आर्म्ड रेबेलियन कहीं भी मास पार्टिसिपेशन पे नहीं मिलेगा। और ये सारी बातें मैं आर्म्ड रेबेलियन के सिद्धांतों से कह रहा हूँ, उत्तराखंड के अंडरस्टैंडिंग की बेसिस पे नहीं। तो जब कोई भी मूवमेंट वो मास स्केल ऑफ मोबिलाइजेशन ले लेता है और उस मास में मोबिलाइजिंग फैक्टर आइडेंटिटी होता है, तो उस सिनेरियो में थोड़ी दिक्कत होती है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म या किसी भी फॉर्म ऑफ आर्म्ड रेबेलियन को एंगेज करने में। तो वो वजह हो सकती है, बट इंटरेस्टिंगली अब मैं ये जानता हूं कि बहुत से लोग हैं जो कि विमेन इन माओइस्ट ग्रुप्स या विमेन इन आर्म्ड रेबेलियंस पे काम कर रहे हैं, जैसे चिल्ड्रन इन आर्म्ड रेबेलियन पे काम कर रहे हैं। तो कुछ कहानियां आ सकती हैं, बट आई थिंक वो जो मास मोबिलाइजेशन की कहानी है एंड 70% ऑफ इट बीइंग विमेन, वो ज्यादा बड़ा कॉजल एक्सप्लेनेशन होगा फॉर नो आर्म्ड रेबेलियन इन उत्तराखंड, एंड व्हिच कैन पॉसिबली गो इनटू द आर्गुमेंट अबाउट that women and feminist and gender scholars have been making for a very long time. Women are by nature, मैं अपने सारे बायसेस के बावजूद ये कह रहा हूँ कि women are by nature peaceful. तो वो कहानी है। जी जी इमरान, since like we are running out of time, एक छोटी सी क्वेरी है रविशंकर चौधरी जी रविशंकर चौधरी हैं हमारे साथ, ये भी यहाँ तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी से हिस्ट्री डिपार्टमेंट से। इनका एक प्रश्न लेंगे, इसके बाद we will like move बिल्कुल convening the program. डॉक्टर रविशंकर चौधरी प्लीज थोड़ा जल्दी में आप पूछेंगे। आई थिंक एडमिन को उनका माइक म्यूट करना पड़ेगा, अनम्यूट करना पड़ेगा। हेलो जी रविशंकर जी, सुनाई दे रहा है सर। मेरी कोई क्वेरी नहीं है, मैं अपने दोनों स्पीकर को बहुत बहुत बधाई देना चाह रहा हूँ। हमारे जो स्पीकर है राजेश भाई और इमरान भाई, काफी जानकारी मिली अच्छी, और आज हम लोग
क्योंकि मैं इतिहास का छात्र रहा हूँ, बहुत सारे इसमें विषय हमसे भी रिलेटेड। और बड़े अच्छे से राजेश भाई ने नक्सलिज्म टेररिज्म दोनों को डिफाइन किया। अलग अलग स्टेट में हम अलग अलग इसको नेचर में पाते हैं। इमरान भाई ने पंजाब की चर्चा की। पंजाब में हम लोग देख सकते हैं किस रविशंकर जी, आप माइक को थोड़ा ना अगर आप अपने चेहरे के सामने रखें तो सुनाई देगा, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है। जी जी, मैं वही ट्रेनिंग के वजह से थोड़ा सा ऐसे प्लेस नहीं, में हूँ। आप माइक को थोड़ा सा ना मास्क को हटाइए और माइक को अपने चेहरे के सामने लाइए। जी हाँ सुन पा रहे हैं? जी हेलो जी जी। तो पंजाब में हम देख रहे हैं कि आतंकवाद दूसरे स्वरूप में दिख रहा है। बिहार में इसका नेचर बदल जाता है। पंजाब में हम देख रहे हैं ये भिंडरेवाला खालिस्तान मूवमेंट चला है। ऑपरेशन ब्लू स्टार होता है इंदिरा गांधी के समय में, और इंदिरा की मौत कहीं ना कहीं इसके कारण हुई। स्वर्ण मंदिर में उन्होंने टैंक घुसाकर भिंडरेवाला का खात्मा किया था। बिहार के संदर्भ में इमरान भाई भागलपुर की चर्चा हुई। 89 का दंगा, मेरी उम्र उस समय 10 साल रही होगी, मैं भागलपुर में ही था। उस समय हिंदू मुस्लिम डिस्टर्बेंस हुए, लगभग मोर देन 2000 के आसपास मारे गए हिंदू मुसलमान दोनों, अधिक। ये तो सरकारी रिकॉर्ड है हमारे पास। यहाँ देखिए कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का हमें इस पे दिखाई दे रहा है। लालू जी उसके बाद सत्ता में आते हैं 89 दंगा के बाद, और देख रहे हैं कि जो दंगे का मुख्य आरोपी यहाँ का भागलपुर का कामेश्वर यादव रहा, तो कहीं न कहीं वो गवर्नमेंट के संरक्षण में बचते रहे और उनको सजा नहीं होती है। और यही नीतीश जी जब 2004 में सत्ता में आते हैं लालू जी के विरोध में भाजपा के साथ, तो फिर उसी दंगे के मुख्य आरोपी को सजा होती है, उम्र कैद की सजा होती है। फिर हमें यहीं पे थोड़ा सा दिखाई पड़ रहा है कि 14 में जो ही नीतीश जी लालू जी के सहयोग से सत्ता में आते हैं, तो वही जो इस दंगे का मुख्य आरोपी था फिर वो बरी हो जाते हैं। तो कहीं न कहीं हम देख रहे हैं कि यहाँ भी हमें ये जातीय दिखाई पड़ रहा है कि किस तरह से इन लोगों ने संरक्षण देने का काम किया जातिगत आधार पे। तो आज अभी बिहार में हमारा इलेक्शन भी चल रहा है और अंतिम वोटिंग के दिन लोग का माइंड सेट कास्ट के आधार पर ही हो जाता है। और लालू जी के समय की चर्चा हुई किस तरह से, अभी इमरान भाई ने हमें बताया कि दलित राजनीति, दलित किस तरह से ये कम्युनिस्ट की तरफ उनका झुकाव होता है। और 90 के बाद आपको याद होगा कि बिहार में 10 से 12 दंगे ये जातीय हिंसा हुई, जिसमें माले के लोग मारे गए। और चाहे ये सहार हो, लक्ष्मण बाथे हो, आप देखिएगा सारा आरा जिला में होता है ये सब कांड। और चूंकि ये लोग लाल सलाम ये जमीन हड़पते हैं, भूमिहीन थे, और ये भूमिहारों के जमीन पर झंडा गाड़ते हैं, लाल सलाम की बात होती है, और रणवीर सेना इसके रिएक्शन में कार्रवाई करती है। तो मेरा इमरान भाई और राजेश भाई से यही एक क्वेरी है कि कहीं ना कहीं सत्ता का संरक्षण मिल रहा है जाति के आधार पर इन पार्टियों को। और लालू जी के समय में ब्रह्मेश्वर रणवीर सेना के जो मुखिया हैं, ब्रह्मेश्वर मुखिया की हत्या नहीं होती है, लेकिन नीतीश जी के इसी सत्ता और भाजपा के शासनकाल में ब्रह्मेश्वर मुखिया मारे जाते हैं। तो कहीं न कहीं आप दोनों भी इससे सहमत होंगे कि कहीं न कहीं ये सब जितनी भी घटनाएं हुई है, तो सरकार को इसका समर्थन, सरकार मौन रही है इस पर, और बहुत अधिक जाति के दबाव में कार्रवाई नहीं हो पाई है। इसी संदर्भ में मैं अपने दोनों एक्सपर्ट से उनका व्यू जानना चाहूंगा। 2 मिनट। हेलो, धन्यवाद रवि प्रसाद जी। राजेश, आप लेना चाहेंगे? रवि जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपका इस सवाल के लिए। मेरा पूरा प्रोजेक्ट ही, मेरी पूरी पीएचडी ही इस चीज पे है कि ये जो राज्य सत्ता है उस पे अधिकार के लिए ही ये जातिगत हिंसाएं हो रही हैं। और ये जातिगत जो स्ट्रगल बोलें, जो कॉन्फ्लिक्ट्स बोलें, वो हो रहा है। और जैसे ही एक खास जाति या एक खास जाति समूह सत्ता को हथिया लेता है, तो वो
उसको बरकरार रखने के लिए अपने जाति समूह की रक्षा करेगा। ये हमारे बिहार के जो राज्य सत्ता का जो ढांचा है उसमें ये एक इनबिल्ट तरीके से ही बना हुआ है। तो मेरा एक पर्सनल ओपिनियन तो यही है कि जब मतलब जिस जाति समूह की सरकार आएगी वो अपने जाति के लोगों की रक्षा करेगी। ये इसमें एक मैं और जानकारी शेयर कर दूं तो उस समय भागलपुर कम्युनल राइट्स के समय में के.एस. द्विवेदी एसएसपी हुआ करते थे भागलपुर से, कृपा शंकर द्विवेदी। उन्होंने हिंदू को कहीं न कहीं फेवर किया था, तो उनको तत्कालीन सरकार ने बर्खास्त कर दिया था। लेकिन जो ही राजीव गांधी की सद्भावना यात्रा भागलपुर होती है, उनका रोड शो होता है 4 किलोमीटर का, तो भागलपुर की जनता चिल्ला रही थी वी वांट द्विवेदी। तो राजीव गांधी कहते हैं कौन है द्विवेदी, इसको बहाल करो, क्यों सस्पेंड की। तो द्विवेदी पुनः एसएसपी बन जाते हैं भागलपुर से। और बाद में देखते हैं कि नीतीश कुमार के समय में यही के.एस. द्विवेदी जो भागलपुर कांड के एक तरह से इनके ऊपर आरोप लगा था, आप देखिएगा कि बिहार में डीजीपी के पद पर भी वो आते हैं, डीजीपी से रिटायर करते। इस तरह की बातें हमें देखने को मिलती है कि किस तरह से इन लोग जाति वर्चस्व में संरक्षण प्रदान करते हैं। हेलो जी इमरान, इस पे आप कुछ शायद ऐड करना चाहते थे। नहीं, मैं राजेश की बात से पूरी तरह सहमत हूं कि जब आप राज्य सरकार की सत्ता के बारे में बात करते हैं और खास करके बिहार के संदर्भ में बात करते हैं तो वो एक आयाम है जो कि हमेशा रहता है। आप उससे ऐतिहासिक तौर पे रहा है, मुझे नहीं मालूम कि हमेशा रहेगा या नहीं रहेगा, बट ऐतिहासिक तौर पे रहा है। मैं इस पे सिर्फ एक ही चीज ऐड करना चाहूंगा, वो है कि हमें सत्ता की जो समझ है अपनी, सत्ता का जो कंसेप्शन है अपना, उसको सरकार से आगे ले जाना चाहिए। मुझे लगता है कि ये अलग अलग सामाजिक समूह जो है या सभाएं जो हैं या विंग जो है, जो बात मैं आई थिंक राजेश को अपने सजेशंस में कह भी रहा था कि हमें सरकार या गवर्नमेंटल अपरेटस से थोड़ा आगे देखना चाहिए। समाज के ये जो हिस्से हैं ये भी सरकारीकरण का हिस्सा है और ग्रामशी इसको सिविल सोसाइटी कहता है, पार्था चैटर्जी इसको पॉलिटिकल सोसाइटी के तौर पे हिंदुस्तान में समझना चाहते हैं। बट हमें ये मानना होगा कि ये जो अलग अलग समूह है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, पुलिस और सिविल, चाहे वो कास्ट ग्रुप्स हो, या चाहे वो सिविल सोसाइटी एनजीओ सेक्टर हो जो कि आज विकास के लिए काम कर रहा है, वो सारे सत्ता के अंग हैं जिसके थ्रू सत्ता एक टेरिटरी, एक पॉपुलेशन पे अपनी पकड़ रखती है, उनके बीच अपने फैसलों को लागू करती है, अपने आयामों को उतारती है। और वहीं से ये बात कहनी चाहिए कि जब हम बात करते हैं कि लालू के दौर में रामेश्वर जी छूट जाते हैं और नीतीश के दौर में उनकी हत्या हो जाती है, इन दोनों सिचुएशंस में कानून अपहोल्ड नहीं किया जाता है, जो कि आई थिंक सरकार का प्राइमरी फंक्शन है या होना चाहिए, शुड भी है सरकार का, कि चाहे उनका छूट जाना या उनकी हत्या हो जाना, दोनों कानून या वैधानिक प्रोसीजरों की उल्लंघनता है। वो उसकी फ्लिम्जीनेस, सरफेशियलनेस चीजों को दर्शाता है कि कानून मायने नहीं रखता, सिद्धांत संविधान मायने नहीं रखते। उस दौर की सरकारें, और सरकारें संवैधानिक सरकारें नहीं, उस दौर की सरकारें अपने सोशियो पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है। तो सरकार जो है वो एक न्यूट्रल समाज के ऊपर बैठी हुई चीज नहीं है, वो समाज में अपनी जड़ों को फैलाई हुई चीज है। वो किस तरह से किस चीज को लागू करती है, आई थिंक हमें वो समझ ऑफ सरकार थोड़ी
बढ़ानी चाहिए। थैंक यू। बस अजी नहीं आज के लिए। थैंक यू भाई। थैंक यू सो मच डॉक्टर इमरान अमीन, डॉक्टर राजेश प्रसाद और जितने भी हमारे प्रतिभागी आज शामिल हुए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। संडे के दिन भी हम सब लोग बैठ के, क्योंकि एक ही दिन सबको मिलता है छुट्टी का, इसके बावजूद भी हम लोगों ने आपको इंगेज किया, आपने अपना एक बहुमूल्य समय हमें दिया और इतनी अच्छी वार्ता हुई, बहुत सारी चीज़ों पे हमारी समझ और क्लियर हुई। तो इन सब के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सारे कोर मेंबर्स इस ग्रुप के, जिनके सहयोग से ये प्लेटफॉर्म धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, और सारे प्रतिभागी जो आज अपना कीमती समय दिए। तो इसके साथ ही हम लोग इस मीटिंग को यहीं पे कन्वीन करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैं जीएसआर के सभी मेंबर्स को अपनी तरफ से धन्यवाद और शुभकामनाएं देना चाहूंगा। ये बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है और मैं समझता हूँ कि बहुत से ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको हिंदी में थोड़ा ट्रांसलेट कर पाना मुश्किल है, बट अगर हम वो कर पाए और आपस में अपनी वो समझ बना पाए जिसमें कि उस भाषा की जो रिचनेस है वो बढ़े, तो मुझे वो पर्सनली बहुत इम्पोर्टेंट व्यक्तिगत तौर पे लगता है कि ये एक बहुत अच्छा पहल है। और संजीव को मैं पर्सनली जानता हूं, बट और लोगों से मिलने का मौका मिला। थैंक यू सो मच। जी धन्यवाद इमरान भाई। और हम लोग चाहेंगे भविष्य में आपको इससे रिलेटेड किसी टॉपिक को एज ए स्पीकर हम इनवाइट करें, ताकि हम लोग आपको और विस्तार में सुन पाए, तो वो हमारे लिए एक अच्छा मौका होगा। बिल्कुल बिल्कुल। मेरी बात हो रही थी, दरअसल थोड़ी व्यवस्था इस वक्त हो गई है क्योंकि अभी जस्ट हमारी यूनिवर्सिटी खुली है, तो पर संजीव से मेरी बात हुई थी और मैंने कहा था कि मैं बिल्कुल प्रेजेंट करना चाहूंगा। अभी जिस पे काम कर रहा हूँ शायद उन पे कुछ चीजों पे मैं आके और जानना चाहूंगा आप लोगों से आपकी बातें, कि मैं जिस तरह से सोच रहा हूँ वो कैसे बेहतर की जा सके। जी तो ठीक है, फिर बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, और इसके साथ हम लोग इस मीटिंग को यहीं बंद करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। नवनीत जी, वी विल कन्वीन द मीटिंग।